Hello, very good morning, children. Yes, today we have to study the revaluation of assets and liabilities. The information given in your books, question number 26. Some informations. One of the partner is retired and the treatment of revaluation of assets and liabilities by preparing the revaluation account and passing journal entries. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर पे भी आप पढ़ चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 26 के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहती है बेटा, उस इन्फॉर्मेशन को, क्वेश्चन को यदि आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आती नहीं। नाउ ओपन योर बुक एंड गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 26. A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Just A, B, C, three partners. 5:3:2. This one is the ratio amongst the partner given in the question, and their balance sheet as at 31st March 2020. Sundry creditors 1,20,000, capital account of the partners given in liabilities column 4 lakhs, 2,50,000 and 1,50,000. In bank column, cash at bank 34,000, sundry debtors 1,50,000, less provision for doubtful debts 9,000, 1,41,000 in assets column, amount column, the amount of debtors given. Stock 1,45,000, plant 2 lakhs, land and building 4 lakhs. Very important information, additional information on the retirement of the partner given below the balance sheet. Bad debts amounting to rupees 10,000 were to be written off and provision for doubtful debts be maintained at existing rate. On existing rate, this one will be maintained. इसी पर थोड़ा हमें आपको बताना भी है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट. प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000. देयर इज ए लाइबिलिटी फॉर रुपीज 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज. सन्ड्री क्रेडिटर्स बी reduced by rupees 8,000 being a liability not payable. Sundry creditors में आपको एक तरफ इंक्रीजमेंट है और दूसरी तरफ डिक्रीजमेंट है. लास्ट इंफॉर्मेशन, स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 15,000 एंड प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 1,80,000. मतलब उसको 1,80,000 तक कर दिया जाए. 20,000 का डिक्रीजमेंट प्लांट में है
अब आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू एबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा बेटा, वो होगा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन। सो नाउ द बुक is in my hand and I would like to explain such, draw the format of the revaluation. So this way prepare the revaluation. With the help of revaluation account, you can pass the journal entry also, my dear. So you can write over here revaluation account. Revaluation account. Debit and credit. Particular amount particulars and amount. This way question number 26. Solution. So now read the terms and conditions. Bad debts amounting to rupees 10,000 were to be written up and provision for doubtful debts be maintained at existing rate. So bad debts 10,000 and in the balance sheet now you can see 9,000 less provision for doubtful debts. जो हम प्रोविजन बनाते हैं तो ऐसी नॉन लायबिलिटीज के लिए ही बनाया जाता है। मैं आपको क्लास 11th में बता चुका हूँ। प्रोविजन रिफर सच अमाउंट सेट असाइड अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द नॉन लायबिलिटीज। तो इन्हीं तरह के दायित्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। तो हम पिछले साल का जो प्रोविज़न बनाकर 9,000 रखे हुए हैं, वो 9,000 हमारा ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए है। तो हमारा प्रोविज़न कितने का है, 10,000 रुपये हमारे डूब गए। 9,000 रुपये हमने इसके लिए रखा हुआ है। तो हमारा जो बैड डेब्ट्स कितने का होगा, डूबा 1,000 रुपये। I need to say 10,000 minus 9,000. Actual bad debts is equal to actual bad debts. Bad debts is equal to bad debts minus bad debts, new bad debts minus equal to minus provision for old provision for old reserve. Old reserve you can tell it. New old reserve. ओल्ड रिजर्व आपका 9,000 है, तो 10,000 माइनस 9,000 1,000 means 1,000. This one is the loss occurred incurred on the retirement of the partner. So this way two bad debts in the valuation account, two bad debts
In revaluation account, this will be recorded as 1000. Clear? हो गया होगा आपके लिए। अब ये कहा जा रहा है कि written up and provision for doubtful debts maintained at existing rate. Your debtors is equal to given debtors 1,50,000. Debtors is equal to 1,50,000 given in your balance sheet. And provision for doubtful debts given. Provision is equal to 9,000. अब हमें ये पता करना है, रेट आपको पता करना है कि किस रेट से है बेटा। तो आपको कितना परसेंट है ये 9,000। दिस वे सपोज दैट जस्ट 1,50,000 इंटू, ये आपको पता नहीं है, रेट पता नहीं है, तो x आपने सपोज कर दिया, x अपॉन 100 इक्वल टू 9,000। आर कैंसिल 0, या इक्वल टू 1500 x इक्वल टू 9,000। x इक्वल टू बेटा 9,000 अपॉन 1500। 9,000 upon 1500 is equal to 6%. This way you can calculate the rate, कितना परसेंट है। तो जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 6% का है प्रोविजन के लिए। अब 6% आप चार्ज करेंगे। डेटर्स 1,50,000 माइनस बैड डेट्स गिवन 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,40,000 into 6 upon 100 existing rate. Just this way 8,400. This one is the provision 8,400. So you can write over here to provision for doubtful debt. Provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts is equal to 8,000. Next terms and condition, and unrecorded creditors for rupees 20,000 will be taken into account. इसका मतलब हुआ कि एक क्रेडिटर जो 20,000 का है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये भी नुकसान है। इंक्रीजमेंट इन लायबिलिटीज डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू unrecorded creditors. Unrecorded creditors. 20,000. क्लियर? आप उसको रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन,
प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग टू ₹25,000। जस्ट द इसके लिए भी प्रोविजन करना है, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, that is 25,000. Now sundry creditors be reduced by 8,000 being a liability not payable. अब यहाँ पर डिक्रीजमेंट हो रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स में कि एक लाइबिलिटी है 8,000 की जो पेबल नहीं है, तो ये आपका बेनिफिट हुआ बाय क्रेडिटर्स। 8,000 के क्रेडिटर्स हैं जो आपको नहीं पेमेंट करना है। लॉस्ट इंफॉर्मेशन, स्टॉक भी इंक्रीज बाय 15,000, 15,000 से आपका स्टॉक जो है वो हो गया है, बढ़ गया है 15,000 बाय स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है 15,000। एंड प्लांट इज टू बी रिड्यूस टू 1,80,000। जो बुक वैल्यू प्लांट का है बेटा आपके बुक में वो 2 लाख है, अब इसे 1,80,000 का कर देना है, तो हमारा 20,000 का वैल्यू कम हो रहा है प्लांट का, तो भी नुकसान है। इधर लिख देंगे 2 प्लांट, अब इसको आप टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे 0 0 4 5 8 5 13 1 14 को 4 हासिल लगा 1 2 3 4 74,400 74,400 and just any one of the given लिखा लीगल डैमेज, देयर इज ए लाइबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग, 15,000 लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट पोस्टेड 15,000 just the total will be total will be 0 0 4 5 5 10 18 19 को 9 4 के साथ है 8 सॉरी 89,400 89,400 अब 15,000 and 8,000 in credit side recorded, so 23,000 रुपए इसमें से माइनस कर दो, 89,400
आप हमेशा रफ करते रहिएगा। 66,000 just the loss on revaluation by loss on revaluation equal to 66,004. 66,000. With the help of the revaluation account, you can pass the journal entry. जो जर्नल एंट्री हमें आपको बतानी है वो है, और बाकी तो सब आप कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जिससे डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, टू प्लान, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन and creditors debit, stock debit to revaluation account। क्रेडिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट कर दिए। जो जर्नल एंट्री आपको बतानी है वो क्या है, देखो ये बैड डेट्स हमारा कितने का हुआ है, 10,000 का। तो 10,000 हमारे डेटर्स कम हो गए उससे, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए आप करेंगे, जो पुरानी वाली है आपका, आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर